Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Now I am going to teach growing plants. You everyone knows that growing plants is very important in our life. In this chapter, we are going to know how to grow plants from seeds, roots and stems and leaves also. Plants are amazing. Plants बहुत amazing होते हैं. They can grow not only from roots, not from seeds. They can also grow from stems, leaves. Let us learn how new plants can grow. Here, the first topic is growing plants from seeds. How you can grow a plant from a seed. In this picture, you can see that this picture is of bean. Beans means राजमा ले लो या फिर चने का सीड ले लो. If you eat an apple or an orange, you will find a seed in that fruit. New plant can grow from these seeds. The next topic is germination. Germination क्या होता है? जैसे आप सीड से कोई नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम germination बोलते हैं. In short, the process by which a seed can grow is called germination. Not all plants can grow from seeds. They can also grow from stems, leaves. Some seeds are eaten by birds और insects. जैसे कोई फ्रूट बर्ड्स खाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ खाए वहीं वो प्लांट्स सीड्स को गिराए. वो कहीं और जाके उस सीड्स को सीड्स के ज़रिए गिराते हैं और वहाँ से भी वो नया प्लांट ग्रो करता है. सम डिस्ट्रॉयड बाय द रेन और द विंड. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं या सीड्स जो ऐसे होते हैं जो कि तेज हवाओं से भी दूर जाके गिर जाते हैं, उससे भी वो नया प्लांट नया प्लांट ग्रो हो सकता है. While some seeds do not get the right condition to germinate. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं उनको ग्रो करने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल पाता, इसलिए वो ग्रो नहीं पाता है. जैसे कि उनको कुछ प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिल पाया या सॉइल अच्छा नहीं हुआ, वहाँ का सराउंडिंग अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं. द फॉलोइंग पिक्चर शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड. लेट मी शो यू. In this picture, you have different stages of bean seed. First, you have put the beans in the soil. In that soil, the bean get their food, water, proper mineral that seed get. Second, the sprouts come. जैसे आपको सीड को जर्मिनेट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, उसको मिट्टी में दबाना पड़ता है, या फिर फॉर एग्जांपल सैलेड जैसे बनाते हो स्प्राउट्स में. स्प्राउट आप क्या करते हो, रात भर उस सीड्स को या बीन को या फिर चना ही ले लो आप, चना को स्प्राउट्स बनाने के लिए क्या करते हैं आप, पानी में उसको पहले रात भर भिगोते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको स्ट्रेन करके मीन्स छान के अलग से उसको या किसी यूटेंसिल में या फिर किसी क्लॉथ में बांध के रखा जाता है. आप देखोगे उसमें से छोटा सा बाहर निकलता है, लाइक दैट ओनली. दिस लेट मी जूम दिस. This type of stem, little thin is coming out from the seed. This is called sprout. Stage, you see that
the sprout which is come out from the structure. Third, the main part coming out of and the shoot in come out leaves that this structure of that bean seed is called cotyledon. In bean seed you see a tiny hole. बीन्स राजमे का जो सीड होता है उसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसके जरिए वो अपना फूड लेता है या फिर उस पर फूड मिलता है. इन लास्ट स्टेज यू सी दैट रूट कम्स अंडर द ग्राउंड एंड द cotyledon part comes above the soil part and the leaves. This one is a stem, this one is leaf. This has got energy from the sun. During the early stages of germination, the seed gets food required for its growth from the cotyledon. जो फर्स्ट स्टेज होता है सीड का वो एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेता है, वो लेता है cotyledon जो होता है सीड का. वेट, in this picture you see that this one is cotyledon. You can call this cotyledon. And sir, here you can see the tiny hole from where they can collect their food. This cotyledon, if you put this bean in the soil, from here the leaves comes out and form the new plant. Now our next topic is dispersal. Dispersal, the process by which the seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. सीड जो होता है वो अपना जो बड़ा पौधा होता है उससे अलग होकर कहीं और जाके गिर जाए, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल बोलते हैं. सम वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल्स आर डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड डिस्पर्सल्स बाय एक्सप्लोजन. Our first in the topic dispersal, the subtopic is dispersal by wind. Seeds of certain plants are very light and have wing-like structures or hair on them. Means जो हवा के जरिए seeds कुछ दूर जाके गिरते हैं वो कैसे होते हैं? Seeds of certain plants are very light. कुछ plants के जो seeds होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं. They have wing-like structure और hair on them. उन seeds पे पंख की तरह स्ट्रक्चर होता है, बना होता है और उस पे hairs होते हैं. These seeds are easily carried away by the wind from one place to another. ये जो seeds होते हैं वो हवा के ज़रिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से उड़ जाते हैं. Examples are maple and dandelion seed. Next topic is dispersal by water. Water के जरिए seeds का dispersal कैसे होता है? Seeds of plants such as the lotus and the coconut are spongy and or have a fibrous covering. जो lotus या फिर coconut का seed जो होता है वो बहुत spongy होता है, soft होता है और वो water उसमें fibrous covering होती है, which helps them to float on water. जो उनको उस सीड्स को हेल्प करता है वो पानी के ऊपर फ्लो करने में या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में. वाटर कैरी दीज सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पानी जो होता है, पानी का जो बहाव होता है वो इन सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल बाय विंड. Dispersal by animals.
seeds such as cockleber have spines or hooks. cockleber means आपने वो तिलचट्टे का सीड देखा होगा जो आपके कपड़ों में फंस जाता है. These seeds stick to the bodies of animals and birds and are thus carried away from the mother plant. ये जो सीड्स होते हैं उसमें कांटों की तरह स्ट्रक्चर होता है उस सीड पे, वो आसानी से किसी एनिमल के बॉडी से चिपक जाता है, या फिर किसी आप भी कहीं उस जगह से क्रॉस कर रहे हो जहाँ वो पौधा हो, उस जगह से आप क्रॉस कर रहे हो और वो पौधा हो अगर, तो उसका जो सीड होता है या तो आपके कपड़े में फंस जाएगा, एनिमल कोई क्रॉस कर रहा हो तो एनिमल की बॉडी पे वो फंस जाते हैं और कहीं दूसरी जगह जाके वो गिर जाते हैं, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट वो सीड होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. मीन्स कोई पौधा है वो ड्राई हो रहा है, उसका फ्रूट जो ड्राई हो रहा है तो वो बर्स्ट मीन्स फट जाता है, तो फटने से जो उसके सीड्स होते हैं वो कहीं दूर जाके गिरते हैं, वहाँ पे जाके ग्रो करते हैं. द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर राइप. मैंने अभी बताया कि जैसे कोई फ्रूट पक जाता है, जैसे कि पीज एंड बीन्स, मटर जब पक जाता है तो वो उसका जो लेयर होता कवरिंग जो होती है वो फट जाती है और मटर के जो सीड्स होते हैं वो कहीं और जाके गिरते हैं और वहाँ जर्मिनेट करके एक नया प्लांट ग्रो होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स. This topic I will explain in next class. Thank you everyone.